السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولس ناول احمد. ہمارے عشق کی ایپیسوڈ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں. موسم گرما کی دھوپ ہر طرف پھیلتی گویا زمین کو بھی تندور بنا رہی تھی، اور یہ آگ ہٹا کے ایک نواحی گاؤں کے باشندوں کی روح تک جھلسانے والی تھی. 3 لوگوں کی زندگی آج اس تپتی دوپہر میں بدل رہی تھی. مردانے میں آج پنچایت جمی تھی، اور اس پنچایت میں آج سردار کی ہی بربادی طے تھی. بڑے بزرگ ایک جانب بیٹھے یہ تماشا محض خاموشی سے دیکھ رہے تھے. زین علی چودھری کے والد مخدوم چودھری اور چچا بھی آج بیٹے کا ساتھ نہیں دے پائے تھے، کیونکہ آج بولنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا. زین علی چودھری شادی تو کرنی ہوگی، ورنہ یہ آج بیچ چوراہے میں قتل ہوگی. سفیر خان تیش سے بھڑکا، یہ ممکن نہیں ہے، میں شادی نہیں کر سکتا، اور اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. آج بازی زین چودھری کے ہاتھ سے باہر تھی. تبھی یہ مقام آیا تھا کہ سفیر خان جیسے شخص کے سامنے وہ سوال ہی بنا تھا. سامنے کھڑی ظرف شام میلی سی سیاہ چادر میں اجلی چاند کی کرن سے چہرہ چھپائے تھر تھر کانپتی آج اپنے فیصلے کی منتظر تھی. دور کھڑی سندری بھی آج شاید عاریہ پار ہونے والی تھی. سندری کی زندگی کا داؤ پیچ آج زین کی ایک ہاں کا منتظر تھا. قصور؟ ارے عورت کے نام پر دھبا ہے دھبا، اور تو کہہ رہا ہے کیا قصور ہے؟ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر وہ سختے سے گویا ہوا. بال چھوڑ اس کے اور آزاد کرو اسے، کوئی نکاح نہیں ہوگا. جواباً وہ آخری کوشش کرتا تھا. شاید تو بھول رہا ہے سرداری کے اصول. بھول گیا کہ یاد کراؤں؟ اس گاؤں کا اصول ہے کہ جو لڑکی بھاگنے کی کوشش کرے گی اسے یا تو قتل کر دیا جائے گا یا پھر نہ سردار کے نکاح میں دے دیا جائے گا، پھر وہ جو چاہے اسے سلوک کرے. اب سردار تو ہے تو نکاح بھی تیرے سے ہی ہوگا. مقابل قبیلے نے بھی سفیر خان کی تائید کی. پل بھر میں زین چودھری کی نظر سامنے موجود سندری پر ٹکی تھی، جس کے نیما لب اور اڑی رنگت اس کی کیفیت کو چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی. فوراً سے پہلے اس نے نظروں کا رخ بدلا کہ کہیں اس کی بے باک نگاہیں سندری کے اجلے دامن کو داغدار نہ کر دیں. چوڑی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر اس نے جیسے فیصلے کو جانچنا چاہا. اس کو الجھن زدہ دیکھ کر ظرف شاہ کے باپ کے ہاتھ اٹھے اور اونچی مسند پر بیٹھے شخص کے سامنے جھڑے. یہی وہ لمحہ تھا جب اس باراب شخص نے ایک ظالمانہ فیصلہ کر کے اپنی محبت کو اندھے کی کھائی میں دھکیلا اور سفیر خان کو بازی جیتنے کا موقع دیا. نکاح ہاں کو بلاؤ، نکاح ابھی ہوگا. سندری کا سانس جیسے کسی نے حلق میں روکا تھا. مزید کھڑے رہ کر وہ اپنی ذات کا تماشا نہیں بنا سکتی تھی. پلو کو جھٹک کر وہ ایک آخری کرب زدہ نظر اس شخص کو سونپ کر جا چکی تھی. وہ آج کئی دن بعد گاؤں واپس آیا تھا، لیکن آتے ہی اس کا سکون، اس کی خوشی غارت ہو کر رہ گئی. سامنے کا منظر اس کا خون کھولا دینے کے لیے کافی تھا. بابا چائے پی لیں؟ تابی نے ان کے آگے ڈرتے ہوئے چائے پیش کی. سر پر دوپٹہ جمائے وہ نازک سی لڑکی اندر سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی. کمال ملک نے غصے سے اسے گھورا. نجمہ خاتون کے چہرے پر گہرا اضطراب پھیل سا گیا. بھلا ان کے قد آدم دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا. انہوں نے زور سے کہا پھینک دو، خوف سے چیخی. گرم چائے اس کے ہاتھ پہ گری تھی. پل بھر میں اس کی چیخیں گونج اٹھی. وہ آج تیزی سے آگے آیا اور تعبیر کا ہاتھ تھاما تھا. کمال ملک جلدی سے کھڑی ہوئے تھے. میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر کیوں تم بابا کے سامنے آئے؟ تم کیوں نہیں سمجھتی یہ تمہارے ماں باپ نہیں بلکہ تمہارے دشمن ہیں؟ بھائی تعبیر کی آنکھوں کی بجلی جوت روشن ہوئی. اسے صحیح سلامت سامنے دیکھ کر وہ سب غم بھول گئی تھی. اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا جن کے چہرے پر غضب پڑ گیا تھا. تم یہاں کیوں آئے ہو اور میری ہی بیٹی کو میرے خلاف کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ کون سی بیٹی؟ بیٹی نہیں، بوجھ ہے یہ آپ کے لیے. وہ استہزائیہ ہنسا تھا. بکواس بند کرو، نکلو یہاں سے. کمال ملک دھاڑے تھے. یہ میرا گھر ہے، یہاں سے نکالنے کا اختیار آپ کھو چکی ہیں. وہ دو ٹوک انداز میں بولتا تعبیر کا ہاتھ تھامے اپنے پورشن کی جانب بڑھا جو اس نے حال ہی میں سیٹ کروایا تھا. کوئی جگہ فاصلے پر کھڑی عروشی کو دیکھ کر اس کا چہرہ مزید سختی میں ڈالا تھا. عروشی نے گہرا آلود نگاہ سے تعبیر کو دیکھا جو لب دبائے درد برداشت کر رہی تھی. وہ تیزی سے تعبیر کو لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا. کس نے کہا تھا بابا صاحب کو چائے پیش کرو؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتے؟ تم ان کے لیے ایک فالتو بوجھ سے کم نہیں ہو. نہ چاہ کر بھی لہجے میں سختی تھی. کسی نے بھی نہیں کہا تھا. وہ سر جھکائے بولی. پھر وہاں کیوں گئی؟ کیا اب بھی تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ وہ تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتے؟ وہ بھڑک گیا تھا. کب تک میں ان کی نفرت سہوں؟ میری بدقسمتی میں میرا کیا قصور ہے؟ میں اسی چاہ میں گئی تھی کہ شاید ان کا دل نرم ہو جائے گا، لیکن نہیں. میں ہر بار غلط ثابت ہو جاتی ہوں. کیوں وہاں اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں وہ شدت گریہ سے روتی. وہاں کی آنکھیں بھی نم کر گئی.
वो इससे महज 1 साल छोटी थी। वो 30 साल का था जबकि ताबीर 29 साल की थी। उससे बड़ी एक बहन हरीम थी जिसकी शादी को काफ़ी अर्सा हो चुका था। वहाँ सुल्तान ने तो साफ लगाया कनी मूंछ और दाढ़ी वाले चेहरे पर इस वक्त शदीद बेबसी थी। वो रोब तपने वाला शख्स अपनी बहन के गम के आगे हर मर्तबा हार जाता था। वहाज ने नरमी से उसके आंसू रगड़ कर वार्डरोब के खाने में मौजूद फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था। उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाए वो उसे पानी का गिलास भी थमा चुका था। मैं अम्मा जान से मिलूँ, शाम तक वापसी है मेरी। सिर्फ आपकी वजह से आया था, वरना इस हवेली में आना मेरे लिए कुछ आपसे कम नहीं है। भाई कुछ दिन रुक जाए, वो हाथा में बोली थी। नहीं ताबीर, तुम सब जानती हो मैं अपने दुश्मनों के दरमियान हरगिज़ नहीं रह सकता। उसने नरमी से हाथ आज़ाद करवाया और वहाँ से निकलता चला गया। वो एक बार फिर माजी को सोचती सिसक उठी थी। कुछ देर बाद निकाह की रस्म अदा की गई। एक मरतबा तो उसके हाथ कांपे थे, लेकिन सुंदरी के हर ख्याल को झटकता वो बस साइन करता गया। इस वक्त इसे असूल निभाने थे। अगर किसी और को सोचता तो गाँव की तबाही उसी के हाथों तय हो जाती। यह अनोखा निकाह था जो सजा के तौर पर दोनों का किया जा रहा था। सैन चौधरी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सजा उसे सरदारी में जीतने की वजह से अनायत की गई है। इस बुरी अमल के दौरान सफ़ीर एक जानिब खड़ा सख्त असरात लिए तमाशा देखता रहा। ज़रब शाह से भी दस्तखत लिए गए थे। कांपते हाथों से उसने भी अंगूठा लगाया था। निकाह था या किसी के जनाजे की तैयारी, खामोशी ही खामोशी थी। यकदम वो सरबराही कुर्सी से उठा। सामने मौजूद ज़रब शाह पर कहर भरी नज़र डालता, सफ़ेद कुर्ते को झटकता। वो अपने खास मुलाजिम को इशारा किए जीप कीजिए, यानी पड़ गया। चलें बीबी जी। उसके झुके सर में जंबे सामने मर्दाना आवाज़ से हुई। पल्लू के एक चेहरे पर बराबर की वह छोटे कदम लेती दरवाजे की जानिब बढ़ी। कदादम खूबसूरत दरवाजे के करीब रुकती हुई एक नज़र अपने बाप पर डाली, जो एक जानिब अब भी हाथ जोड़े खड़े थे, क्योंकि सरदारों के सामने हाथ खोलना उनके लिए गुनाह के बराबर था। कासिम की नज़र भी ज़रफ़ शाह पर पड़ी, लेकिन उन्होंने फौरन नफरत से निगाह फेरी। यही वो लम्हा था जब वो फूट फूट कर रोई। कासिम, इस ले जा इसे यहाँ से, वरना मैं भूल जाऊँगा कि यहाँ के सरदार की बीवी है। सफ़ीर खान के पास पर कासिम ने एक नज़र ज़रफ़ शाह की जानिब देखा, जिसकी मोटी काजल से लबरेज आंखें नमी से भरपूर थीं। चले बीबी। वह दोबारा खोया होता स्याह प्राडो की जानिब आया। इसे पिछली सीट पर बिठाकर ड्राइविंग सीट संभाले गाड़ी को आगे बढ़ाया। सफ़ीर खान की पुरसोच निगाहें डूब जाती स्याह प्राडो पर जमी रह गई थी। क्या बात है, आज बड़ी रौनक लगी है। सब कैदी बड़े निखरे निखरे लग रहे हैं। जेल के पिछले खुले मैदान में पुशअप लगाते उसने अपने खास आदमी से पूछा था। पुशअप लगाते उसके मसल्स नुमाया हो रहे थे, जो सब कैदियों को उससे मुमताज़ बनाते थे। बहुत सुना है नया एसपी सेंट्रल जेल के राउंड पर आने वाला है, और मुझे ऐसा लगता है वो आपके लिए ही आ रहा है। नौफल के खास आदमी बासत ने से तफसील बताई तो उसके जहन में चमका हुआ। कहीं एसपी वहाँ सुल्तान तो नहीं आ रहा? नौफल ने सीधे होते अपने घने बालों को पीछे किया पूछा। जी बॉस, वही एसपी आ रहा है। मतलब सारे साहब आ रहे हैं? उसकी आंखों की छम से वो हसीना नुमाया हुई थी, जो पिछले 5 सालों से उसकी अमानत थी। बॉस क्या कह रहे हैं? बासत हैरान हुआ था। कुछ नहीं, अपनी दाढ़ी से हिलाई वो बड़बड़ाया था। इंस्पेक्टर राजल से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर जल्दी मुझ तक पहुँचाओ, फिर इस बारे में बात करेंगे। बाजू कमरे के पीछे बांधे वो शान से चलता अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था, लोग उसके आगे सर झुकाए सलाम पेश कर रहे थे। उसकी दहशत, रौब व दबदबे ने ही बड़े से बड़े मुजरिम को उसके आगे झुकाया था। वो शख्स देखने में जितना पुरअसरार लगता था, अंदर से उतना ही खतरनाक भी था। क्या हुआ ज़ैन, इतने गुस्से में कहाँ से आ रहा है? सदीक़ा बेगम जो मुलाज़मों की निगरानी में आज लॉन की सफाई करवा रही थी, ज़ैन चौधरी को तहशदा अंदर बैठता देख कर दहली। कुछ नहीं हुआ अम्मा, बाजी हार आया हूँ। हार अपने नाम करवा कर उसका तोहफा भी साथ लाया हूँ। मुंशी आवाज़ में धाड़ता वो अंदर की जानिब बढ़ा। सदीक़ा बेगम भी उसके पीछे आई थी। ज़ैन रुक बच्चा, बता हुआ क्या है? तेरे बाबा कहाँ रह गए? रक्की, इधर आ, पानी ला जल्दी से। इस बीच उन्होंने रक्की को पानी का हुक्म भी दिया। रक्की तेजी से शीशे के चमकते गिलास में पानी लिए सहन में आई। पानी का गिलास उसने एक झटके में दूर फेंका। इसे गिलास थमाती रक्की बेसाख्ता चीख-पुटी के साथ दूर हटी। दहल तो सदीक़ा बेगम भी गई थी। नहीं पीना मुझे सरदार नहीं बनना था, बल्कि बनना ही नहीं चाहिए था। तेजी से मुँह से झाग उड़ाता ऊपर की जानिब बढ़ गया। सिगरेट पर सिगरेट फूंकता वो बस एक सोच में उलझा था। ये पल भर में जिंदगी ने उसके साथ क्या खेल खेला था। उसकी किस्मत ने पलटा खाकर एक अनचाही अनदेखी लड़की उसकी किस्मत से जोड़ दी। एशट्रे सिगरेट की राख से भर चुकी थी। सारा कमरा तबाही का मुंह बोलता सबूत था कि ज़ैन चौधरी अपना गुस्सा इन बेजान चीज़ों पर निकाल चुका है। यकदम उसने सिगरेट फेंक कर अपने बाल नोचते मखदूम चौधरी पर भी
उसे शिद्दत से गुस्सा आया था जिन्होंने आज बीच चौराहे में उसको तनाव कर दिया था। हाल में एकदम चोर उठा, यकीनन वो लड़की घर आ चुकी थी। तेजी से वो बाहर की जानिब बढ़ा, जहाँ बड़े से हाल में मखदूम चौधरी, सदीका बेगम और कयूम चौधरी और 20 साल अजवर भी मौजूद था। मुंसा बेगम शायद इन सब से बेखबर आराम में मसरूफ थी। बेहया लड़की गांव की इज्जत खराब करने चली थी। सदीका बेगम को बारिया ज़रफ़शाह के सफ़ेद गाल को लाल कर गया। यकदम वो ज़मीन पर गिरी। मखदूम चौधरी अब भी खामोश बैठे महज सामने का मंजर देख रहे थे। ये सदमा ही कम नहीं था कि वे एक नीच लड़की को अपने आला ख़ानदान का हिस्सा बना चुके थे। यकदम वो दौड़ता हुआ सीढ़ी से नीचे आया। अम्मा, इसे हाथ में मत लगाना, ये अब घर की इज्जत है। असूल पसंदी की मिसाल जहाँ भी उसने कायम की। इज्जत? सरदार के मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। ये एक भागी हुई लड़की है जिसे तो सर का जंग लगा ताज बना कर ले आया है, और तुझे इज्जत कह रहा है? सदीका बेगम पूरे तनफ्फुर से बोली। उठ, यहाँ से निकल, तेरी इस हवेली में कोई जगह नहीं है। सदीका बेगम दोबारा इस पर चील की मारा चिपटी और इसे जोर से धक्का दिया। यकदम वो गिरते गिरते बची। ज़ैन चौधरी ने बेसाख्ता उसे थामा था। ज़रफ़शाह की नज़र बेसाख्ता अपने मसीहा की जानिब गई। अम्मा, मना किया है, नहीं मारना। नहीं, क्या सुनाई नहीं दिया? वो भरपूर तरीके से दौड़ा। ज़ैन चौधरी, हद में रहो वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरकार मखदूम शाह की चुप टूटी थी और वो भी खौफ से उठ खड़े हुए। रखी, इस लड़की को तबेले में छोड़ कर आ, इसकी औकात वहीं की है। मखदूम शाह के हुक्म पर रखी तेजी से आगे आई, लेकिन ज़रफ़शाह अब तक ज़ैन के सहारे खड़ी थी, जो इसे अब भी कंधों से थामे खड़ा था। ज़ैन की खैरालुक नज़र रक्की की जानिब उठी और एक नज़र नहीं रक्की का सांस रोका। वो यकदम रुकी थी। अम्मा साईं, अगर मैंने पंचायत में इसे कत्ल होने से बचाया है तो यहाँ कैसे नहीं बचाऊंगा? जानता हूँ इसने गुनाह किया है और अब ये लड़की मेरी जिम्मेदारी है, तो सज़ा भी मैं ही तय करूँगा। ज़रफ़शाह की तो कोई जान हलक को आई। क्या वो भी इसे सज़ा देने वाला था? इसे मेरे कमरे में छोड़ कर आओ, और खबरदार, तुम्हारा रवैया इसके साथ ज़रा भी बुरा हुआ। रक्की को हुक्म देता उसने ज़र के कंधों से बाजू हटाए। ज़रफ़शाह की आंखों में एक बार बौछार शुरू होगी। ऊपर जाओ लड़की, उसको खड़े देख ज़ैन चौधरी को ऊंची आवाज़ में बोला। कांपती सी ऊपर की जानिब बढ़ी। रक्की ने सख्ती से इसका बाजू दबोचा। ज़ैन, ये तेरे कमरे में नहीं जाएगी, तो कैसे इतनी इज्जत दे सकता है? सदीका बेगम तंजी से बोली। अम्मा, शायद असूल भूल बैठी हो। सरदार हूँ और सरदार हर फैसला कर सकता है। एक तंजी नज़र उसने मखदूम चौधरी पर डाली, जैसे कह रहा हो कि सरदारी के असूल क्या होते हैं। मखदूम शाह तैश सदा से ज़ैन चौधरी की जानिब आए। सरदारी हमें भी आती है ज़ैन चौधरी, मत भूलो कि हम अभी भी फैसला कर सकते हैं। तो फिर पंचायत में क्यों नहीं किया? आप बोले, वहाँ क्यों खामोश रहे थे? आप जानते हैं मैं क्या चाहता था? आंखों में लाल डोरे उभरे थे जो दिल की हालत वाज़ेह कर रहे थे। दुश्मनों से यारी निभाने से पहले अपना मायार भी देख लेते। मखदूम चौधरी ने गोया उसका दिल मुट्ठी में लिया। जवाबन वो मुट्ठी भींच कर रह गया। रक्की से ऊपर लेकर जाओ, और अगर अब तुम रुकी तो इस घर से बाहर होगी। ज़ैन ने दोबारा रक्की को कहा। जी तो चौधरी जी, बड़बड़ाती हुई मदद तलब नजरों से सदीका बेगम को देखती रह गई। जा। हाथ के इशारे से उन्होंने रक्की को जाने की इजाज़त दी और दोबारा ज़ैन की जानिब मुतवज्जो हुई। भाभी देखें, ये मसला ऐसे हल नहीं होगा। अब इस लड़की को कमरे में जाने दें। कयूम चौधरी ने पहली मर्तबा गौरवशानी की। ज़ैन को गोया ऐसे ही किसी सहारे की ज़रूरत थी। तशक्कुर से उसने चचा की जानिब देखा। कयूम, तुम चुप रहोगे तो अच्छा होगा। मखदूम चौधरी शदीद नागवारी से बोले। कयूम साहब महज़ भींच गए। क्यों नहीं बोली वो? जिस हवेली में सच के साथ खड़ा हो जाए वही आप लोगों को गलत लगता है। ज़ैन तनदही से बोला। ज़ैन चौधरी, हद पार ना करो। मखदूम चौधरी ताड़े। ज़ैन, कमरे में जाओ, हम बात करते हैं भाई साहब से। कयूम चौधरी ने इशारे से उसे जाने का कहा। पाँव पटकता वो ऊपर की जानिब बढ़ गया, लेकिन रुख दूसरे कमरे की जानिब था। रक्की उसके नातवान वजूद को घसीटती ज़ैन चौधरी के कमरे में लाई। गाल पर अब तक उसे सनसनाहट महसूस हो रही थी। दरवाज़ा खोलते रक्की भी थमी। खूबसूरत से कमरे में एक तूफान बदतमीजी मची हुई थी। कांच के कई टुकड़े उसकी पतली सी चप्पल के नीचे आते मजीद कुचल गए। बेसाख्ता वो थमी और रक्की भी रुकी थी। क्या कर रही है लड़की? पाँव पर लगवाओगी? एक तो वैसे ही तुम मुसीबत बनकर मेरे गले में अटक गई है, और अब यह कारनामा अंजाम देंगी। रुको, मैं झाड़ू लाती हूँ। तेजी वो इसे खड़ा करती बाहर की जानिब गई और छोटी सी राहदारी से होते हुए अंदर गुम हुई थी। ज़रफ़शाह की नज़रें बेसाख्ता चारों जानिब घूम गई। खूबसूरती की आला मिसाल था ये दूसरा पोर्शन। चारों तरफ कमरे ही कमरे थे। लाउंज की जगह एक बड़ी सी ग्रिल बनी हुई थी जो चारों तरफ थी। लाउंज महज नीचे ही सेट किया गया था।
जीपों से भी देखा जा सकता था। दीवार पर नसब दादा पर दादा की रौबदार तस्वीर देखकर ज़रफ़शा कांपी। अगर वह तस्वीर में इतने रौबदार थे तो हकीकत में न जाने कैसे होते। एक तस्वीर में ज़ैन चौधरी अपनी भावना और वजाहत के साथ दिलफरेब अंदाज से खड़ा था। नज़र गोया इस तस्वीर पर थम सी गई थी। बिना पलक झपकाए वो देखती रह गई। ये लड़की क्या देख रही है? वो बड़े साहब की तस्वीरें हैं और तेरी इतनी हैसियत नहीं कि अपनी मैली नज़रों से इन्हें देखे। रक्के की आवाज़ पर वो सरपटाए, नहीं मैं तो। इस पूरे वाक़े के दौरान वो अब बोली थी, ज़्यादा बड़बड़ न कर, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये चीज़ें जल्दी से समेट दे। वो लपीची सी नज़र झुकाए खड़ी हुई। हवेली में उसका स्वागत जिस शानदार तरीके से किया गया, ऐसे अंदाज़ा हो चुका था ये सब ये अब उसका मुकद्दर होगा। इसलिए बिना कोई तकल्लुफ़ की वो सब चीज़ें बेड पर रख दी गई। जो सलामत बची थी, कुछ चीज़ें टूट कर बेकार हो चुकी थी। ये पागल लड़की, ये क्या कर दिया? बेड पर क्यों रखा सामान? छोटे चौधरी ने देखा तो गुस्से से चिल्लाएंगे। डरी सहमी सी वो एक जगह खड़ी हुई। मुझे समझ नहीं आया कि ये कहाँ रखूँ। वो धीमी पुरकशी सी आवाज़ ने यकदम रक्की को भी चौंकाया। बेसाख्त नज़र उसके चेहरे पर गई और जैसे थम सी गई। चांद का टुकड़ा थी यह, एक हसीन मूरत। रक्की को समझ न आया उसे क्या कहे। नाक में एक चांदी की नथनी के अलावा चेहरे पर कोई आराइश नहीं थी। नथनी भी उसकी छोटी तीखी सी नाक पर यूँ सज रही थी जैसे इसके लिए बनाई गई हो। बल्कि जैसे उलिये में भी वो किसी का ईमान बआसानी डगमगा सकती थी। इसकी खूबसूरती को देखकर उसे ज़ैन चौधरी की किस्मत पर रश्क आया, लेकिन उसका किरदार एक बदनुमा धब्बे की मानद था जो सारी खूबसूरती को स्याहबख्ती में बदल रहा था। लड़की, मैं तुझे काम सिखाती हूँ, देख तूने ऐसे करना है। यकदम उसके हसीन चेहरे से नजरें हटाए सफाई करते बोली थी। कीमती डेकोरेशन को इसने इनकी जगह पर सेट किया और बेड की खूबसूरत चादर को बेड से जुदा किया जो ज़रा सी भी मैली नहीं थी। छोटे चौधरी के कमरे की चादर एक दिन में दोबारा बदली जाती है। सुबह अगर एक चादर होगी तो शाम तक इसे बदल देना है, वरना वो तूफान ले आते हैं। दिन में 3 बार उनके कमरे की सफाई की जाती है, भले कमरा साफ हो या गंदा। चला मेरी मदद कर। रखी ब्लू सिल्क की खूबसूरत डबल बेडशीट ड्रॉर में से निकाल दी। उसे मुखातिब करते पास बुलाने लगी। ज़रफ़शा तेजी से उसकी जानिब आई। हाथ धोए तूने? रखी ने तीखी नज़रों से उसे देखा। बेसाख्ता उसका सर नफ़ी में हिला। जा धो कर आ, पागल लड़के, तुझे लगता है सब सिखाना पड़ेगा? रखी बड़बड़ाई थी। मदद तलब नज़रों से उसने रखी की जानिब देखा। हाय रे, क्या मुसीबत गले पड़ गई मेरे, इधर आ, मैं धुलवाती हूँ। वो इसलिए बाहर की जानिब आई और जहाँ से झाड़ू लाई थी इस जानिब बढ़ी। लंबी राहदारी से होते ही वो वापस आई और दोबारा कमरे की जानिब आई। कमरे में बेडशीट को बिछा कर रखी ज़मीन पर बैठी वो बेतकल्लुफ़ से बोली, थक गई आज तो, पानी पीने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। ज़रफ़शा उसे हैरत से देखती रह गई। उसका अंदाज कहीं से भी ज़ाहिर नहीं कर रहा था कि वो भी चंद लम्हे पहले उससे मिली है। रखी की नज़र भी उसकी जानिब गई और वो तलख सा मुस्कुराई। तो हैरान हो रही है ना कि मैं तुझसे बेतकल्लुफ़ क्यों हो रही हूँ? ज़हर की नज़रें झुकी। तुम मेरी हम उम्र है, जानती हूँ तूने बहुत गलत हरकत की। गाँव के लड़के के साथ भागती तो बर्दाश्त भी हो जाता, लेकिन तूने चुना ही मुखालिफ गाँव का लड़का। लेकिन एक बात कहूँ, तू जीत की आखिरियत को पहुँच कर आ रही है। तेरा गम मैं अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए बस इसलिए तुझसे बातें किए जा रही हूँ। इस वक्त न जाने वो लड़का किस हाल में होगा जिससे तू मोहब्बत करती थी। मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। रखी बोलने पर आई तो अब बोलती चली गई। ज़रफ़शा ने भी उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा और भागने वाली बात पर उसने नज़र चुराई। लेकिन लड़की जिसके साथ तेरी किस्मत जुड़ी है ना, वो भी कोई आम शख्स नहीं है। इस पूरे गांव और इससे अगला जो गांव है उसका भी सरदार है। फौज तो ज़मीन से उठकर आसमान पर आकर बैठ गई। अब तूने गम नहीं मनाना कि तुझे तेरा प्यार नहीं मिला, बल्कि खुश हो कि तू ज़ैन चौधरी की बीवी बनी है। लड़की की अगली बात पर वो झटके से नज़र उठाती उसे देखने लगी। कुछ ज़्यादा बोल गई क्या? रखी उसकी नज़र का मफ़हूम समझते हुए बोली। बेसाख्ता उसने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा छोड़ सारी बात, तू ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ज़रफ़शा है। जैसे खूबसूरत तेरी शक्ल है वैसा ही खूबसूरत तेरा नाम है, और तेरी आवाज़ भी मीठी सी है। रखी सुलेखा बेगम की आवाज़ से वो अपनी जगह से उछली। हाय रब्बा, मालकिन अब तो मेरी चटनी बनाएगी। अच्छा सुन, ज़मीर पर बैठना, तेरे कपड़े मैले हैं, कहीं चौधरी जी गुस्सा ना करे। झट से कहती वो बाहर निकल गई। अपनी हैसियत को उसे अच्छी तरह पता था, इसलिए वो मखमली पर्दों के करीब दीवार के साथ टेक लगा कर बैठ चुकी थी। ज़हन में बेसाख्ता बाबा का ख्याल आया और गाल पर सनसनाहट ने आँख नम की थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके
बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।